پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی پر پرائم ٹائم نیوز بلیٹن۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ سے جی کشن ریڈی کو کابینی وزیر اور بڈی سنجے کو بنایا گیا مملکتی وزیر۔ مودی کے ساتھ ان دونوں قائدین نے بھی لیا حلف۔ ٹی ایس پی ایس سی کے زیر اہتمام گروپ 1 کے پریلیمز کا کامیابی انعقاد، سخت چوکسی کے درمیان امیدواروں نے لکھا پرچہ۔ ادارے سیاست و ملت فنڈ کے زیر اہتمام تانڈور میں دو بدو پروگرام کا کامیابی انعقاد۔ تانڈور کے علاوہ وقارآباد، پرگی اور محبوب نگر سے بھی والدین نے کثیر تعداد میں کی شرکت۔ شادی کو سادہ اور آسان ترین بنانے کی تلقین۔ ضلع کے بھی آصف آباد میں گیس سلنڈر پھٹ پڑا، 2 مکانات جل کر مکمل طور پر خاکستر، مالی نقصان کوئی جانی نقصان نہیں۔ اتاپور میں 40 سالہ شخص کے قتل کی واردات، ساتھیوں کی آپس میں دشمنی بتائی جا رہی ہے سبب۔ مودی بنے تیسری بار وزیر اعظم، راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ نے دلایا عہدے اور رازداری کا حلف۔ 48 وزراء نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ لیا حلف۔ اور نیٹ معاملے پر راہل گاندھی کا سخت رد عمل، طلباء سے کہا میں بنوں گا پارلیمنٹ میں آپ کی آواز، کہا پیپر لیک مافیا نے 24 لاکھ طلباء کی زندگی سے کیا کھلواڑ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بی جے پی نے آج ریاست تلنگانہ سے ریاستی صدر جی کشن ریڈی کو کابینی درجہ دینے کے احکام جاری کر دیے ہیں، جبکہ بنڈی سنجے کو مملکتی وزیر کی حیثیت سے حلف دلوایا گیا ہے۔ آج 7:15 بجے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک پراثر تقریب میں مودی نے تیسری بار وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا، جبکہ دیگر ارکان وزراء و مملکتی وزراء کی حیثیت سے حلف لیا۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کشن ریڈی، بنڈی سنجے سمیت جملہ 48 وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن یعنی کہ ٹی ایس پی ایس سی کے زیر اہتمام آج گروپ 1 کے پریلیمز ابتدائی امتحانات منعقد کیے گئے تھے۔ امتحانی مراکز کے اطراف اکناف دفعہ 144 نافذ العمل تھا۔ امیدواروں کے ہال ٹکٹس کی تصدیق کے بعد ہی مرکزی باب الدخلے پر ہر ایک امیدوار کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد امتحانی مرکز میں جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ ریاست کے تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز میں پریلیمز پرانداز میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ کانفیڈریشن آف مائنارٹی انسٹیٹیوشن یعنی کہ قومی کے زیر اہتمام ایس ایس سی ٹاپرز طلباء و طالبات میں ایوارڈز کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس تقریب کی نگرانی چیئرمین تلنگانہ اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے کی، جبکہ ایس اے ہدا ریٹائرڈ آئی پی ایس نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں خطاب کیا۔ صدر قومی ایم ایس فاروق نے تنظیم کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور خلیل الرحمان سیکریٹری قومی نے ایوارڈ تقریب کی تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا۔ تقریب کی کارروائی کنوینر کووی محمد ہدایت علی خان نے چلائی۔ وقارآباد کے تانڈور میں ملت فنڈ و ادارہ سیاست کی جانب سے کامیابی کے ساتھ آج رشتوں کا خصوصی دو بدو پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مفتی سہیل احمد عمری کی خیرات کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ادارہ سیاست اور جناب زاہد علی خان کی جانب سے اس مستحسن خدمت پر تہنیت پیش کی گئی اور دو بدو کو ایک عظیم کام قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ یقیناً آج کے مسلم معاشرے میں شادی بیاہ کا معاملہ ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے اور دو بدو جیسے پروگرامز اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے فکرمند والدین کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہو رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف دانشوران نے خطاب کرتے ہوئے نکاح کو آسان بنانے کی عوام سے تلقین کی اور کہا شادی میں بیجا اسراف سے بھی گریز کیا جائے۔ شادی کی تقریبات میں کھانے کے بیجا اسراف اور ڈشز میں اضافے کو بھی غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے عوام سے اپیل کی گئی کہ وہ شادی کو سادہ سے سادہ بنانے کے لیے اقدامات کریں تاکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں عمل ہو سکے۔ صالح بن حاذق، خالد سیف اللہ، شعیب ثناء اللہ، محمد اخلاق اور دیگر نے اس دو بدو پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار پیش کیا۔ تانڈور کے علاوہ وقارآباد، پرگی، محبوب نگر سے بھی لوگ کثیر تعداد میں اس دو بدو پروگرام میں شریک ہوئے۔ 8-10 گھنٹے کے اندر 12 کے اندر جو گھر چلے آتے تو پورا ماحول کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس کو سٹوانے میں بڑا ٹائم لگتا، لیکن یہاں ہمارے پاس برداشت کرنے کو تیار
लड़के की अम्मा बोलती है अरे उन्हें से क्या तेरे को और शादी करेंगे, ऐसा 10 मिलते तेरे को। ये जो 2 डायलॉग है बच्ची के माँ की तरफ से, बच्चे के माँ की तरफ से, ये 2 डायलॉग आज माशरे में बहुत बड़ी खराबी लाई हुई है। और अक्सर हमारे पास आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चियाँ ऐसा रुबाब से आ रहे, मेरे को बुला होना, लेटर लिख के दे रहे हमारे सदर साहब, मेरे को बुला होना। वजह कुछ भी नहीं है, हमारे देखना जब हम कर रहे हैं शरीर वजह कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ये छोटे मोटे मसले हैं। कभी फ़ोन आ गया, उन्होंने फ़ोन रख दिया तो किससे फ़ोन से बात कर रही थी, देखिए भाई आप वहाँ के नए रिश्ते होने वाले हैं, थोड़ा तवज्जो, ये फ़ोन भी बहुत बड़ा, उससे पहले तो शैतानी से हो, लेकिन अच्छा भी है वो, उसको इस्तेमाल करने का है, लेकिन वो फ़ोन को हम ज़्यादा शैतान के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल घर में जिंदगी में खराबी आ रही है। अब बच्ची फ़ोन कर रही, बात कर रही, शोहर साहब आ गए, उन्होंने राग नंबर बोल के रख दिए, इससे बात कर रहे थे। हमारा इस्लाम जो है हमारे दिलों में उतरने से रह गया है, हमारे अमल में उसका इजहार नहीं हो रहा। यही वजह है कि शादियाँ भी हो रही हैं, खुला और तलाक का रेशो भी बढ़ा। इस मौके पर मैं खास तौर पर ख़वातीन से बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तांडूर में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन गुज़िश्ता 30 साल से काम कर रही है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के अहदाफ में से बहुत सारे अहदाफ हैं, लेकिन उन अहदाफ को अचीव करने में मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नाकाम इसीलिए है कि आइनी तनाज़ात बहुत ज़्यादा उनके पास आते हैं, और इन आइनी तनाज़ात के तजुर्बे से मैं आपको एक बात कहता हूँ, 100 अगर शादियाँ टूट रही हैं तो उसमें 10 लड़के वालों की तरफ से टूटती हैं, 90 शादियाँ के टूटने का सबब लड़की और लड़की की माँ की हड़बड़ी होती है। अब समाज में एक नया मसला शुरू हो गया। लड़की जिस दिन पैदा होती है उसी दिन से वालिदैन लड़की की परवरिश, लड़की की तालीम, लड़की के अच्छी जगह शादी के काम देखना शुरू कर दिए। लड़की घर में पैदा हुई तो गोया एक मुसीबत आने वाली है, उस मुसीबत के दिफा के लिए तैयारी करो। लड़कियों की तालीम पे बहुत तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है, लड़कियों की तालीम पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन उसी घर में जो लड़के हैं उनकी तालीम के मुताबिक माँ बाप संजीदा नहीं है। मस्जिद जहां आरा हुमायूं नगर में खुसूसी दीनी गरमाई क्लासेस का कामयाब इख्तिताम अमल में आया। याद रहे कि यहाँ गुज़िश्ता 2 सालों से गरमाई दीनी क्लासेस का बाज़ाब्ता एहतमाम किया जा रहा है। इन दीनी गरमाई क्लासेस के दौरान बच्चों और बच्चियों को दीनियात के अलावा नमाज, अहादीस, दुआएं और दीन इस्लाम के बुनियादी उसूल और अरकान से वाकिफ़ करवाया जाता है। और बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले बच्चों और बच्चियों में आज इनामात भी तकसीम किए गए। मोहल्ले के साहिब खैर असाब परवेज़ भाई, हामिद भाई, रज़ाक भाई और दीगर ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना भरपूर किरदार निभाया, जिस पर इन्हें भी तहनीत पेश की गई। कि 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह गरमाई मदरसा यहाँ पर चल रहा है। ये दूसरे साल का इख्तिताम हुआ। इससे पहले भी साल इसी तरह बच्चों को हम लोग इनाम से नवाजे थे और ये साल भी करें। आइंदा इंशाल्लाह इसी तरह ज़िंदगी बाकी रही तो खिदमत करते रहेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के ज़िम्मेदार हजरात का, जो महल्ले के बड़े हैं, जो बच्चों को महल्ले में जितने अपने महल्ले के बच्चे हैं उनको दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए बगैर फीस के यहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं। मुसाफों को मुकर्रर करे हैं और इनाम भी रखे हैं ताकि बच्चों के अंदर शौक़ पैदा हो सके। और वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग अपने बच्चों के अलावा भी अपने अड़ोस पड़ोस में भी जो बच्चे खाली फिर रहे हैं उनको भी तरजीह दिलाए, ताकि क्या है वो लोग यहाँ पर आके दीनी तालीम सीखेंगे तो उसका भी सवाब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अंजुमन चिरम मुशीराबाद और केर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। अंजुमन कमेटी हॉल भोलकपुर में इस मुफ्त मेडिकल कैंप में तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीजों ने अपना मुआयना करवाया और अद्वियात से इस्तिफादा उठाया। अद्वियात के अलावा यहाँ टेस्ट वगैरह भी मुफ्त में किए गए। शुगर, BP, बुखार, ख़वातीन के अमराज, मौसमी अमराज के अलावा हमा किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए लोग रुजू हो रहे थे। ताजिरान चिरम के जिम्मेदारान, समाजी और सियासी कायदीन के अलावा केर अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपना बेहतरीन ताउन पेश किया, जिससे अवाम में मसरत की लहर दौड़ गई। Greetings from Kera Hospitals, Mushirabad.
today we are organizing mega health camp at Anjuman Society Community Hall. So we tied up with Anjuman Society. So we are conducting a mega health camp here. So here blood pressure, vitals, and PFT, BMD tests we are doing, and super specialty consultations also available here. So Dr. Moinuddin, General Physician, Dr. Imran Khan, General Physician, and Dr. Syed Abdul Alim, Pulmonologist, Cardiologist Dr. Sudhit Kumar, and Gynecologist Dr. Tasneem and Dr. Swati. So all super specialty doctors came here, and camp is going on. So well response from the public, and we thank Anjuman Society members. And today especially we are going to launch special package for Anjuman Society people. So this is EHS tariff. We are providing EHS tariff for Anjuman Society members. So please utilize these services. आज अंजुमन कमेटी हाल मुशीराबाद में अंजुमन ताजरान करीम बाकराम मुशीराबाद के ताउन से और मुशीराबाद केयर हॉस्पिटल की तरफ से एक मेगा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें अब तक जो है ना तकरीबन 200 पेशेंट आ चुके हैं। इस कैंप के जरिए जो है ना लोगों को एक कार्ड दिया जा रहा है, साथ ही बोले कार्ड का लॉन्च किया गया। सुबह में अंजुमन के ताजरान करीम के सदर जनाब अफसर अली साहब के हाथों कार्ड का लॉन्च हुआ है। जो कार्ड पेशेंट्स को दिया जा रहा है, वो कार्ड जो है ना केयर हॉस्पिटल में प्रेजेंट करने पर उन्हें ओपी में 20% और जो है ना एडमिशन में जो है ना इनपेशेंट में जो है ना उनको EHS में जो है ना उनका इलाज होगा। और ये डिस्काउंट अंजुमन के ताउन से जो है ना केयर हॉस्पिटल में मिलेगा। आप तमाम लोगों से अंजुमन ताजरान के ऑफिस रुजू होकर ये कार्ड बाद में हासिल कर सकते हैं। जिस किसी को भी जरूरत हो अंजुमन से हासिल कर लें। अब तक कितने पेशेंट अटेंड करें? 200 पेशेंट अब तक आ चुके हैं। ये कब तक चलेगा? ये सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे तक। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। करीम नगर में लक्ष्य स्कूल के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान पैमाने पर मोटिवेशनल इवेंट का अम्बेडकर स्टेडियम करीम नगर में अमल में लाया गया, जिसकी निगरानी डॉक्टर मुश्ताक अली चेयरमैन लक्ष्य स्कूल ने अंजाम दी। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर ज़मान ने तालीमी अहमियत और तलबा तालिबात को अपने तालीमी मुस्तक़बिल को दरख्शां बनाने में दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर अज़्म इस्तिक़लाल पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले तलबा अपने इरादे को मजबूत करें और दूसरी जानिब मियारी तालीमी इदारे का इंतखाब करते हुए अपनी मेहनत और लगन जस्तुजू से जिद्दोजहद के जरिए अपनी मंजिल को तलाश करें। मुनव्वर ज़मान मोटिवेशनल स्पीकर का करीम नगर में वालिहाना इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर मुश्ताक अली चेयरमैन लक्ष्य स्कूल की कोशिशों से शहर करीम नगर में बैनुल अक़वामी मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर ज़मान के प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली। 720 आ सकते हैं, 719 आ ही नहीं सकते इंसान को, 718 कभी नहीं आ सकते, 17 कभी नहीं आ सकते, 16 आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं। अगर एक कोई क्वेश्चन आपने लिखा है और गलत लिखा है तो 5 मार्क कटेंगे, तो कितने मिलने चाहिए आपको? 715 मिलने चाहिए। अगर सारे 180 आपने सही लिख दिए तो कितना होगा स्कोर? 780, 720। ये 719 कहाँ से मार्क्स आ गया? ये घोटाला चल रहा है। मैं गवर्नमेंट से इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं, जैसे इलेक्शंस में पूरी निगरानी के साथ काउंटिंग होती है, उसी तरह नीट, JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हमारे हीरे हैं जो बच्चे इम्तिहान लिख रहे हैं, उनका मार्क्स किसी और को दिया जा रहा है। घोटाले हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे टैलेंटेड बच्चे, महरूम हो जाएंगे, अपने ख्वाब अचीव नहीं कर सकते हैं। 67 बच्चों को 720 मार्क्स आए, कैसे आ सकते हैं भाई? 2 साल पहले, 3 साल पहले पहला लड़का हिंदुस्तान में जो 720 ले आया
वो आफाक नाम था, जो हम दोनों मुलाकात किए थे, उड़ीसा का था, रौरकेले का। शोएब आफ्ताब था नाम। 720 2021 में पहली दफ़ा साथ में एक लड़की को भी आया था, वो आपके शहर की थी शायद, लखनऊ से या यूपी से। 2 साल के बाद 67 बंदे 720 मार्क्स ले आ रहे हैं, और वो 67 में कुछ 17 ऐसे बच्चे हैं जो एक ही कमरे में बैठकर इम्तिहान लिखे हैं। एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, उस हॉल में 17 ऐसे बच्चे, कुछ है 17 ही है, 8 ऐसे बच्चे हैं, 8 माजरत चाहता हूँ, जिन्हें 720 मार्क्स आए हैं। मतलब कुछ तो हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं होना देना है। आवाज़ हमने उठाना है। अपील करें आप लोग, डट कर करें कि हमें इंसाफ चाहिए। मेहनत करने वाले नौजवान बच्चे ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, यही बच्चे हैं, यही हिंदुस्तान को सुपर पावर बना सकते हैं। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत से बंदों ने मुझे मैसेज किया करीमनगर के प्लेटफॉर्म से, आप इस मुद्दे पर बात करें, कभी इंशाल्लाह यहाँ इससे बड़ा प्रोग्राम होगा। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी सदर माइनॉरिटी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल की जानिब से बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तलबा तालिबात को नीट इम्तिहान के मुतालिक आगाही फ्राहम की गई और उन्हें तैयारी के लिए मुफीद मालूमात फ्राहम करने का एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान मुकर्रर मोहतरम अब्दुर्रब आतिफ हैदराबाद से मदऊ किया गया था, जिन्होंने तलबा को इम्तिहान की तैयारी के अहम नुकात और हिकमत अमलियों के बारे में आगाह किया। काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किए जा रहे हैं, क्योंकि नीट का जो टेस्ट है वो अपनी जगह मुश्किल तरीन है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल तरीन ये काउंसलिंग का अमल को बना दिया गया है। क्योंकि इस काउंसलिंग के अमल में अगर बच्चों से ज़रा भी मुश्किलात पेश आ जाती हैं या ज़रा भी उनसे किसी किस्म की तरद्दुद हो जाती है, तो ऐसी सूरत में उनको अपनी सीट से हाथ धो लेना पड़ता है। और ख़ुसूसी तौर पर रिज़र्वेशन के मामले के अंदर, स्टेट कोटे के मामले के अंदर और अदर स्टेट के कोटे के मामले के अंदर, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जब तक कि पूरी तरह से हक़ाइक़ उनके सामने रख के उनको ये बता दिया ना जाए कि किस तरह से आपको काउंसलिंग के लिए जो नेशनल ज़िम्मेदारान है उन तक अपनी एप्लीकेशन को फ़िलअप करने से पहले, अभी हमारे रब साहब भी यही बता रहे थे कि 1 से 4 दफ़ा पहले गौर कर लीजिए, उसके बाद आपकी अपनी एप्लीकेशन को आप सबमिट करना चाहिए। इसीलिए यहाँ शहर वरंगल में हम लोग इनको यहाँ मदऊ करते हैं, और यहाँ के वरंगल के जितने भी, और हमारी पेश नज़र ये होता है कि इसके अंदर खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए मुनक़िद नहीं किया जा रहा है, ये इन जनरल है, हर कोई इसके अंदर शिरकत कर सकता है। और अभी भी कई एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट्स भी हाल में मौजूद हैं जो इस काउंसलिंग प्रोग्राम की गाइडेंस के वास्ते यहाँ शिरकत कर रहे हैं। मीडिया की अहम और अफसानवी शख्सियत रामोजी राव की आखिरी रसूमात अब्दुल्लापुर मिट के करीब रामोजी फिल्म सिटी में तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की अर्थी के जुलूस में शामिल हुए, उनकी अर्थी को कांधा भी दिया। उन्होंने रामोजी राव की खिदमात को खिराज पेश किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर्स के साथ साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने भी अर्थी जुलूस और आखिरी रसूमात में शिरकत की और रामोजी राव की खिदमात को खिराज पेश किया। रामोजी राव की मौत पर बतौर एहतराम तेलुगु फिल्म चैम्बर्स ने शोक का ऐलान किया था और आज तमाम फिल्म्स की शूटिंग्स भी मनसूख कर दी गई थी। उधर तपूर में एक 40 साल शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त राजेंद्र नगर के साकिन मोहम्मद लईक के तौर पर की गई है, जिसने बार एंड रेस्टोरेंट में अपने साथियों के साथ पार्टी की और फिर राजेंद्र नगर रोड के फिश बिल्डिंग के करीब पहुंचा। इस मौके पर उसके साथियों के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसके साथियों ने लईक पर चाकू से हमला कर दिया और उसका गला काट दिया। इस वारदात की इत्तला के साथ पुलिस वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के इस्पानी अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस इस कत्ल की पस पर्दा वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। मिडनाइट रात में 12 साढ़े 12 बजे अप्रॉक्सीमेटली 12:30 बजे एक आदमी 258 पिलर को अपोजिट रोड में मर्डर हुआ बोल के पुलिस को इंटीमेशन आया, तो इमीडिएटली पुलिस रशअप हुआ। आए तो डेड बॉडी है, वो फुल ऑफ ब्लड में है, उसका थ्रोट कट है, वो पूरा ब्लड जा रहा। वो पिटिशन नहीं आया, उसका पेरेंट्स आया, वो डेड बॉडी के साथ गया। आफ्टर पिटिशन देने के बाद उसके अपन क्या है, कौन डिटेल्स आता है, उसे कौन कौन मारा, क्या रीज़न क्या है बोल के ये
और किल्ड पर्सन का भी पर्टिकुलर्स वो दिए तो हम बाद में बोलते हैं, वो इंक्वायरी में है पूरा। कौन सा पुलिस स्टेशन लिमिट है? ये अतापुर। आसिफ नगर झिर्रा में एक तेज रफ्तार लॉरी ने दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। मुकामी अवाम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ड्राइवर हालत नशे में था और तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से लॉरी की टक्कर से दूसरी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मफरूर ड्राइवर की तलाश भी शुरू कर दी। गाड़ियों को बेहद नुकसान पहुंचा और गाड़ी मालिकी ने अपने नुकसान के मुआवजे का मुतालबा करते हुए थोड़ी देर के लिए एहतजाज भी शुरू कर दिया था। होटल आसिफ नगर झिर्रा मेन रोड के पास एक बेकाबू लारी ने 4 गाड़ियों को डैमेज कर दिया है। ये प्राइवेट से भरी हुई लारी है। बताया जा रहा है कि मुकामी नौजवान जो देखे, जो लाइव जो 12:30 बजे मौजूद थे डायमंड रोड के पास, वो बता रहे थे कि ड्राइवर पीछे था, शराब के नशे में धुत था, गाड़ियों को टक्कर मार के बेकाबू कर दिया, 4 गाड़ियाँ डैमेज कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ पर जो सो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ियाँ डैमेज हुई है, प्राइवेट की गाड़ी भरी हुई है। यहाँ के मुकामी एमएलए हमारे जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, कुछ इसकी इत्तला मिली, वो मुझे फ़ोन पे बताए, जाके फ़ौरन स्पॉट पे देखो बोले। हमारे इत्तला के सदर मुतमद्दिन तमाम कारकुन यहाँ पर स्पॉट पे पहुँच के यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आसिफ नगर से मैं अभी बात किया, फ़ोन पे बात किया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे बोल के बोले। और हम लोग भी देख रहे गाड़ी किसके पास आई, ये गाड़ी का ड्राइवर कौन है, गाड़ी का मालिक कौन है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराने की बराबर कोशिश करेंगे और कानूनी कार्रवाई कराएंगे, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे ड्राइवर के ऊपर। और यहाँ पर जो लेके आ रहे गाड़ियाँ रातों में बहुत काफ़ी तकलीफ दे रहे लोग गाड़ियाँ ला के, कई लोगों को ऐसी पी खा के तमाशे हो रहे हैं बाहर से गाड़ियाँ ला के। आसिफाबाद में गैस सिलेंडर के फट पड़ने के नतीजे में 2 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। जिले के बाबापुर में एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिसके नतीजे में आग लग गई। आग ने दूसरे मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया और 2 मकानात जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ। अब नजर अहम कौमी खबरों पर। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी कि एनडीए की तीसरी हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू हो गया है। वज़रा की नई कौंसल में शामिल अराकीन की वज़ीर आज़म मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी हुई। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, नड्डा वगैरह ने मोदी से मुलाकात की। लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर इन कायदीन की मुलाकात हुई। मोदी ने आज शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया। उनके साथ तकरीबन 48 वज़रा ने हलफ उठाया। और इससे पहले वज़ीर आज़म मोदी ने आज सुबह कौमी जंगी यादगार, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल जाकर खिराज पेश किया। मोदी पहले राजघाट पहुंचे और फिर बाबा क़ौम महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। उनके साथ हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। इसके बाद मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर जाकर उन्हें खिराज पेश किया। उन्होंने इंडिया गेट पर वाक़ कौमी जंगी यादगार का भी दौरा किया, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों फौज के आला अफसरान भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मेडिकल में दाखिले के लिए NEET यानी कि नीट के इम्तिहान में धांधली को पेपर लीक माफिया की साज़बाज़ करार देते हुए कहा, लाखों बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले इस माफिया निज़ाम को खत्म करने का कांग्रेस ने अज़्म किया है। राहुल ने कहा, मोदी ने अभी हलफ नहीं उठाया है और नीट इम्तिहान में धांधली ने 24 लाख से भी ज्यादा तलबा और उनकी फैमिली को तबाह कर दिया है। इसी इम्तिहानी मरकज के 6 तलबा ने ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर टॉप किया। कितनों को ऐसे नंबर मिलते हैं जो तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन हुकूमत पेपर लीक होने के इम्कान से मुसलसल इनकार कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने इस पेपर लीक इंडस्ट्री से निपटने के लिए एक मजबूत मंसूबा बनाया था जो एजुकेशन माफिया और सरकारी मिशनरी की साज़बाज़ से चल रही है। उन्होंने कहा, आज मैं मुल्क के तमाम तलबा को यकीन दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ बनूंगा और आपके मुस्तक़बिल से जुड़े मसाइल को पूरी ताकत से उठाऊंगा। नौजवानों ने इंडिया इत्तेहाद पर इत्तेमाद का इजहार किया है। इत्तेहाद उनकी आवाज़ को दबने नहीं देगा। शुमाली हिंदुस्तान की कई रियासतें अभी शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, मशरक़ी मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ मकामात पर दर्जे हरारत का इम्कान है। दिल्ली में गर्मी की लहर रुकने का नाम नहीं ले रही है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में 10 से 12 जून तक गर्मी की लहर का अलर्ट जारी किया है।
उधर मौसम की पेशगोई करने वाले एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान साहिली कर्नाटक, जनूबी वस्ती महाराष्ट्र और जनूबी कोकण और गोवा में दरमियानी बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। केरल, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार जज़ायर के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश के साथ कुछ मकामात पर मौसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि तेलंगाना के कुछ इलाकों यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया वैसे तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन इन दिनों उनके दरमियान एक गुब्बारों के जरिए कचरे की मुंतकिली की एक नई जंग छिड़ गई है और बाज़ाब्ता जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि वो शुमाली कोरिया के गुब्बारों के बदले अब साउंड स्पीकर से जो है सो उसका जवाब देगा। पेश नाज़रीन इस सिलसिले में खास तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि वो शुमाली कोरिया के खिलाफ अपनी लाउड स्पीकर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करेगा। शनिचर इतवार की दरमियानी शब शुमाली कोरिया की जानिब से कचरे वाले गुब्बार एक मरतबा फिर भेजे जाने के बाद जनूबी कोरिया के सदर के दफ्तर ने अपने बयान में कहा, हम आज शुमाली कोरिया के खिलाफ लाउड स्पीकर नस्ब करेंगे और लाउड स्पीकर नशियात का आगाज करेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि दोनों कोरियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर शुमाली कोरिया पर होगी। तकरीबन एक हफ्ते के वक्फे के बाद शुमाली कोरिया ने एक मरतबा फिर कचरे वाले गुब्बारे जनूबी कोरिया भेजने शुरू कर दिए हैं। मीडिया के मुताबिक दालुक सियोल और सरहद के करीब इलाकों में कचरे वाले दर्जनों गुब्बारे मिले हैं। इससे कबल हफ्ते को जनूबी कोरिया ने कहा था शुमाली कोरिया कचरे वाले गुब्बारे भेजेगा। जनूबी कोरिया की फौज ने कहा उसने शुमाली कोरिया के इस इक़दाम को संजीदगी से लिया है और ज़रूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के लिए चौकस है। जनूबी कोरिया ने खबरदार किया था कि वो कचरे वाले गुब्बारे भेजने पर शुमाली कोरिया के खिलाफ नाकाबिल बर्दाश्त इक़दाम करेगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक जनूबी कोरिया मुमकिन तौर पर शुमाली कोरिया में फ्रंटलाइन लाउड स्पीकर की नशरियात दोबारा शुरू कर देगा, जिसमें इंसानी हक़ूक़ की अबतर सूरत हाल, आलमी खबरें और पॉप गाने शामिल रहेंगे। शुमाली कोरिया के 26 मिलियन में से ज़्यादा शहरियों को बैनुल-अक़वामी टीवी और रेडियो नशरात तक रसाई हासिल नहीं। शुमाली कोरिया के मुताबिक कचरे वाले गुब्बारे जनूबी कोरिया की जानिब से पम्फलेट्स और किताबचे भेजने की मुहिम का जवाब था। 2 जून को शुमाली कोरिया ने कहा था जनूबी कोरिया में कचरे वाले गुब्बारे आर्जी तौर पर भेजना बंद कर रहा है, क्योंकि जनूबी कोरिया के शहरियों को इस चीज़ का काफ़ी तजुर्बा हो गया है कि वो कितना नाखुशगवार महसूस कर रहे हैं। जुमेरात को जनूबी कोरिया में सामाजिक कारकुनों के ग्रुप ने इंतबा के बावजूद शुमाली कोरिया के जानिब गुब्बारे भेजे थे, जिसमें शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग पर तनकीद वाले किताबचे थे। शुमाली कोरिया ने किताबचे की मुहिम और लाउड स्पीकर की नशियात पर बरहमी का इजहार किया है और माजी में गुब्बारों स्पीकर पर फायरिंग की। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना से जी किशन रेड्डी को काबीनी वजीर और बडी संजय को बनाया गया मुमलिकती वजीर। मोदी के साथ इन दोनों कायदी ने भी लिया हलफ। TSPSC के ज़ेर एहतमाम ग्रुप 1 के प्रीलिम्स का कामयाबी निखात, सख्त चौकसी के दरमियान उम्मीदवारों ने लिखा पर्चा। इदारे सियासत और मिल्लत फंड के ज़ेर एहतमाम तांडूर में दू बदू प्रोग्राम का कामयाबी निखात। तांडूर के अलावा विखराबाद, परगी और महबूब नगर से भी वालिदैन ने कसी तादाद में की शिरकत। शादी को सादा और आसान तरीन बनाने की तलकीन। जिले के भी आसिफाबाद में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 2 मकानात जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। माली नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं। अत्तापुर में 40 साला शख्स के कत्ल की वारदात, साथियों की आपस में दुश्मनी बताई जा रही है सबब। मोदी बने तीसरी बार वजीर आजम, राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया ने दिलाया ओहदे और राजदारी का हलफ। 48 वज़रा ने भी वजीर आजम के साथ लिया हलफ। और नीट मामले पर राहुल गांधी का सख्त रद्दअमल, तुलबा से कहा मैं बनूंगा पार्लियामेंट में आपकी आवाज। कहा पेपर लीक माफिया ने 24 लाख तुलबा की जिंदगी से किया खिलवाड़। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज,
नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ। इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।